automation in simple definition में, in the simple definition if you're talking about automation, it means that you're emphasizing all your steps to the particular mechanism. आप अपने पूरे steps जैसे एक particular mechanism में fit कर दे. That is, we are putting the all the steps, pre-analytical things, analytical things, post-analytical things, all the things you are putting under the sequential mechanical process. पूरे एक sequence में mechanical process को आप पूरे चीजों को उठा के एक machine में fit करें. Those kind of thing in general we call as the automation. The automation की देखिए past history है. Past history. Previously there was multi-steps procedures was there. पहले ज़माने में जब अपन करते थे, आज भी अगर पूरे प्रीवियस बायोरिएक्टर मेथड रहने दो या दूसरा कौन से मेथड्स रहने दो, प्रोटीन एस्टिमेशन के, एल्बुमिन एस्टिमेशन के, ये चीज़ होती है, तो ये मल्टी स्टेप्स प्रोसीजर्स है, ठीक है, ये एक मल्टी स्टेप्स प्रोसीजर है. तो पहले जब शुरू में इनिशियल ऑटोमेशन का शुरुआत करी थी, तो देयर वाज मल्टी स्टेप्स प्रोसीजर्स वाज देयर. These multi-step procedures, these multi-step procedures has converted into the mono-step procedures. ये evaluation कैसा हुआ वो बताऊंगा. पहले एक multi-step procedures थे जिसके अंदर बहुत सारी चीजें केमिकल्स को लेके मिक्स करना था आपको. Then you will add the sample, then you will wait, then you will go for the analysis and other things. But due to this continuous progress in the laboratory field in terms of automation, they have identified these multi-step procedures. They have converted these multi-step procedures into the mono-step procedure. पूरे multi-step procedure को आप क्या करें, mono-step procedure में convert. ठीक है, but still mono-step procedures करने के बाद में भी still जो work की demand थी, ठीक है, जो workload था वो fulfill नहीं हो सक रहा था. Even though you have converted multi-step procedures into the mono-step, but still the organization is unable to meet with the large workload. So what they have done, they have designed instrument to handle whole analytical process in a mechanized fashion. अभी क्या बनना चाह रहे हैं, हमें मालूम मल्टी स्टेप प्रोसीजर या मोनो स्टेप प्रोसीजर करें. Even though you are unable to meet with the workload, आप वर्कलोड को फिर भी हैंडल नहीं करना कर सकते. So they have started the whole analytical procedure, whole analytical process. Whole analytical process in a mechanized fashion. Whole analytical process को एक मैकेनाइज्ड फैशन में लिखे और इसको जी लोग एक टर्म बोले ऑटोमेशन. ठीक है, from the multi-step they have introduced the mono-steps, even though they are unable to fulfill. अब mono-step में भी देखिए आप, अगर आप mono-step procedures भी देख रहे तो एक ही reagent ऐड करें. You need to take the test tube, you need to add a single reagent, then you will add the sample and you will take the reading. ये भी mono-step है, लेकिन mono-step करने में भी टाइम लगता. It will also consume a time. So अपन क्या करें, they have also gone so further that के मोनो स्टेप्स में भी अब क्या आपको मोनो स्टेप्स के लिए भी क्या है, सैंपल सेंट्रीफ्यूज करो, सैंपल में सीरम निकालो, फिर रिएजेंट लेके आओ, रिएजेंट को रूम टेम्परेचर पे रखो, फिर रिएजेंट को पोर करो, सैंपल ऐड करो, पिपेट एक्यूरेट रहना, दैट इज आल्सो थिंग्स. ठीक है, you need to add the exact quantity of the sample, then you need to mix it well, you need to incubate the sample, you need to take the reading in the calorimeter. इतना टाइम करने में प्रोसीजर को भी टाइम लग जाएगा. फॉर एन एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट एक स्टार्ट सैंपल है. स्टार्ट सैंपल हमेशा इमरजेंसी सैंपल्स को बोलते हैं. ठीक है, स्टार्ट सैंपल एक इलेक्ट्रोलाइट सैंपल. इलेक्ट्रोलाइट जनरली एक स्टार्ट सैंपल है. सोडियम पोटेशियम क्लोराइड मोस्टली, देयर आर अदर इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो, but potassium will be the key role here because doctors are more concerned regarding the potassium. So as it fluctuates, it can affect your cardiac rhythms. ठीक है, so these potassium, अब ये स्टार्ट सैंपल, अब इसके लिए आप प्रोसीजर पूरा कर लेते हुए बैठे तो you can't dispose the report immediately. So in that thing, तो आपका whole process जो है analysis का, that is pre-analytical or analytical or post-analytical हो, they have tried to design into the one system and they have given the term called automation to that. Mechanized fashion of whole process is called automation.
ठीक है। अब ऑटोमेशन में क्या हुआ, ऑटोमेशन के भी ऐसा सडन आपको निकल के बड़ा एनालाइजर नहीं आ गया आपके पास, उसका भी सिस्टमैटिक प्रोसेस gone through with. We have seen the era where the systematic thing of improvement things are still you are improvising those things and in order to bring the results quick by using the minimum reagent. मेन ऑटोमेशन भी कैसा है देखिए, ऑटोमेशन का इस वास्ते भी इंट्रोड्यूस किया गया ऑटोमेशन लेबोरेटरिकल वर्क्स में, ताकि एक तो इन्हें वर्कलोड को इजीली हैंडल कर सकना, मैक्सिमम वर्कलोड दिए तो इमीडिएट रिजल्ट्स देना, पॉइंट 1 पॉइंट 2 मिनिमम सैंपल यूज करना, ये भी एक अच्छा ऑटोमेशन का प्रोसेस रहता। अब आप दूसरे अगर लंबे प्रोसेस अगर शुरू करेंगे तो उस पहले में बहुत सारा सैंपल की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम सैंपल 100 टू 100 माइक्रोन्स में कितने भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑटोमेशन का एडवांसमेंट है। थर्ड पॉइंट नंबर 3, इट शुड नॉट कंज्यूम द मोर रिएजेंट। पॉइंट नंबर 3 ये भी है इसके अंदर, सैंपल भी कम यूज करना, रिएजेंट भी कम यूज, बिकॉज़ कॉस्ट इफेक्टिव भी रहना। अब आप दूसरे प्रोसीजर्स लियो जिसमें दुनिया का रिएजेंट लग जाता, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहना। पॉइंट नंबर 3, इट शुड बी एक्यूरेट एंड इट शुड बी क्विक, क्विक भी रहना, एक्यूरेट भी रहना। तो अगर क्विक भी रहना, एक्यूरेट भी रहना, इसके लिए ना क्या करें, ये तो प्रोसीजर है। पहले जमाने में क्वालिटी कंट्रोल को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, अब आप क्या करें, क्वालिटी कंट्रोल को इंट्रोड्यूस करें। क्यों करें, इन ऑर्डर टू चेक दैट एक्यूरेसी, प्रिसिजन, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। ये चार चीजों पे मेन क्वालिटी कंट्रोल आपका पिलर्स है, 4 पिलर्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल है, सेंसिटिविटी, सो एक्यूरेसी, प्रिसिजन, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। इसके अलावा अब क्या हुआ, तो पहले क्वालिटी कंट्रोल ही चेक करते थे। क्यों क्वालिटी कंट्रोल चेक करने की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, व्हाई द क्वालिटी कंट्रोल हैज बीन प्रोवाइड सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस, बिकॉज़ हियर इन द ऑटोमेशन देयर प्रीवियसली अपन क्या है, एक्सपायरी चेक कर लेते, वो चीजें चेक कर लेते थे, आप प्रोसीजर कर करके आपको आदत हो जाती थी, खाली कलर्स देख के भी बोल सकते थे आपके नहीं है रिएजेंट काम कर रहा नहीं कर रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एडवांसमेंट की वजह से यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई दोस थिंग्स। So quality control has got introduced and it got so much importance because here all your machine will depend on your quality control. आपकी जितना भी automation है ये पूरा quality control पे डिपेंड रहता है, because क्यों विजुअली आप कुछ भी चीज नहीं देख रहे, सेलुलर करंट जा रहा नहीं जा रहा, तो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स है क्वालिटी कंट्रोल के जो मॉनिटर करने के लिए आपको दिया है। अगर क्वालिटी कंट्रोल फेल अगर हो गए तो उसके लिए उसको करेक्ट करने के लिए कैलिब्रेशंस दिए गए हैं, ठीक है। कैलिब्रेशंस, जनरली कैलिब्रेशंस कब यूज करते हैं, मान हर एक मशीन की सेंसिटिविटी, मैं थोड़ा एलॉबरेट करके बोल रहा हूँ ताकि फिर दूसरी चीज़ें भी आपको रिवाइज हो जाना। हर मशीन की एक सेंसिटिविटी रहती है, हर मशीन की एक लीनियरिटी रहती है, ठीक है, सेंसिटिविटी भी रहती है, लीनियर। जनरली एक मशीन दे सो पूरे मशीन पूरे वैल्यूज नहीं बताती है। फॉर एग्जांपल एक मशीन है जो SGOT की वैल्यू रेंज 5 to 500 है, इसके बीच में आई तो उन्हें चेक कर सकते हैं, नॉर्मल वैल्यू नेवर रॉन्ग, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीनियरिटी, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू नेवर रॉन्ग। इन्हें इसका मतलब क्या है, एक मशीन है जो 5 वैल्यू तक कम से कम बता सकती है, 500। अगर किसी पेशेंट को 645 है तो मशीन बताती क्या बताती, समझ रहे, हर मशीन का एक सेट पैरामीटर है, उसको अपन लीनियरिटी बोलते हैं। तो जनरली क्या हो जाता मालूम, ये लीनियरिटी देखो इतना बहुत सेंसिटिव रहता है। अगर किसी मशीन के पेशेंट के अंदर 645 वैल्यू आया तो ये 500 में बताता आपको, एरर बताता, बिकॉज़ इसका इतनी कैपेसिटी नहीं है उसको चेक करने की। अब जैसा ही हाई वैल्यूज आना शुरू हो गए आपके पास, एक्सट्रीम हाई वैल्यू, तो इन लोगों के लीनियरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर लीनियरिटी डिस्टर्ब हुई तो नॉर्मल सैंपल की भी एब्नॉर्मल बताना शुरू कर देता हूं। समझ में आता है आपको व्हाट इज द रूल। अब लीनियरिटी चूंकि डिस्टर्ब हो गई तो इन ऑर्डर टू करेक्ट दैट लीनियरिटी यू नीड टू कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कैलिब्रेशन इज नथिंग बट करेक्टिंग द मिस्टेक्स। अब आप कैसा मिस्टेक्स करेक्ट करेंगे, ये लीनियरिटी जो डिस्टर्ब हो गई तो कैलिब्रेटर एक फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, क्वार्टर फॉर्म में आता, उसको आप वैल्यूट करके देन यू रन द कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन करने की वजह से क्या होता, आपकी मशीन की जो लीनियरिटी डिस्टर्ब हो गई थी हाई वैल्यूज की वजह से, इट विल गोइंग टू कम बैक अगेन टू दिस नॉर्मल, ठीक है। सो ऑटोमेशन जहां पर इंट्रोड्यूस किया गया वहां पे क्वालिटी कंट्रोल और कैलिब्रेशन, लीनियरिटी चेक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। क्यों, बिकॉज ऑटोमेशन आपका डिपेंडेंस है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, आपका डिपेंडेंस है कैलिब्रेशन, ठीक है। फ्रॉम द मल्टी स्टेप दे हैव गॉन टू द
Monostep. From the monostep they have gone to the automation. Automation is nothing but whole analytical process in the mechanism fashion. अब यहाँ पे ये ऑटो एनालाइजर्स जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस जब हुए ऑटोमेशन में, so in that what is the responsibility? They can handle the large workload and reduce the human error and reliable result. Reliable result मतलब accurate जी accurate reliable accurate reliable मतलब भरोसेमंद trustworthy ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एक तो आपका लार्ज वर्कलोड उन्हें हैंडल कर सकना, ह्यूमन एरर मिनिमाइज करना और रिलायबल रिजल्ट, जिससे आप भरोसा कर सकते हैं रिजल्ट्स। तो रिलायबल रिजल्ट्स, ठीक है। इन सिंपल मीनिंग ऑटोमेशन इज अ मैकेनाइजेशन ऑफ वेरियस ड्यूटी परफॉर्म बाय लैब पर्सनल्स। लैब पर्सनल्स मतलब यहाँ पे जो लैब का पर्सन है उसके बहुत सारे ड्यूटीज को उन्हें अकेला हैंडल कर सकना, द टर्म विल कॉल्ड एज अ ऑटोमेशन। अब लेबोरेटरी पर्सन्स जनरली क्या करते हैं काम इन लोगों का, व्हाट दे डू, पिपेटिंग द रिएजेंट, पिपेटिंग द स्पेसिमेन, प्लाज्मा मास सीरम रो, ठीक है, स्टैंडर्ड्स, कैलिब्रेशंस, मिक्सिंग द रिएजेंट विद द स्पेसिमेन, ये पूरे चीजें अपन करते सकते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन, कैलकुलेशन, प्रिंटिंग रिपोर्ट्स, प्रिपेयरिंग क्यूसी, ये अपन करते हैं, ठीक है। पिपेटिंग हो गया, रिएजेंट हो गया, सैंपल हो गया, मिक्सिंग हो गया, कैलिब्रेशंस हो गया, कैलकुलेशंस भी अपने को टेस्ट बाय स्टैंडर्ड इनटू 100, टेस्ट बाय स्टैंडर्ड इनटू 50, वी यूज्ड टू डू दिस। बट ऑटोमेशन आने की वजह से क्या होगा, ये पूरे चीजें आप ऑटोमेशंस कर ले रहे हैं, ये लोग ऑटो एनालाइजर्स कर ले रहे हैं एंड दे आर गिविंग डायरेक्टली द रिजल्ट्स। ओके, नाउ द एनालाइजर्स In these analyzers, they have divided the analyzer into three different categories. The first one is the continuous flow analyzer. Continuous flow analyzer. Second one is the multi-channel continuous flow. Continuous flow analyzer. Third one is the discrete analyzer. Continuous flow analyzer, multi-channel analyzer, and discrete analyzer. आप साथ में लिखना पड़ेगा, theoretical matter है, need to write about this. Continuous flow analyzer, multi-channel continuous flow analyzer, discrete analyzer. ठीक है। Now the advantages of the continuous flow analyzer is that it is possible to test large number of specimens for a particular test. Large number of specimen को टेस्ट कर सकता हूँ मैं for a particular test. For example, आप बहुत सारे फास्टिंग सैंपल ले लिए सुबह में, ठीक है, तो एक साथ बैच में आप लगा सकते हो उसको, लेकिन उन्हें एक टाइप का टेस्ट कर सकता है, एक टाइप के ऊपर, समझ रहे, एक टाइप का टेस्ट। ये पूरा मैं एडवांसमेंट बता रहा हूँ, कैसा आप इवैल्यूएशन को आप कैसा एनालिसिस बने, ठीक है ना। Disadvantage is that it is at a time only one type of determination. यानी एक टाइम में उन्हें एक टाइप का टेस्ट कर सकता, मल्टीपल टाइप का टेस्ट नहीं कर सकता, समझ रहे। कंटिन्यूअस फ्लो एनालिसिस।
थोड़ा अपन वर्किंग ऑफ कंटीन्यूअस फ्लो एनालाइजर्स देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कंटीन्यूअस फ्लो एनालाइजर, दिस कंटीन्यूअस फ्लो एनालाइजर, they'll going to क्या, they'll going to differentiate the sample with the air bubble। पहले आप वर्किंग ऑफ द कंटीन्यूअस फ्लो एनालाइजर देखेंगे, दैट विल गो फॉर द अदर थिंग्स, ठीक है ना। इन द कंटीन्यूअस फ्लो एनालाइजर, there will be a chamber, that will be called as a sampler, this will be called as a sampler। इसके अंदर क्या करना है, आपको सैंपल लेके रख देना है, छोटे छोटे बेल्स बने हुए, एंड यू विल गोइंग टू हैव अ स्मॉल कोएट्स, सैंपल डालना है, देन यू नीड टू प्लेस इट इन द सैंपलर, ठीक है। नाउ टू दिस सैंपलर there will be a prompting pump, there will be a prompting pump, there will be a prompting pump, and there will be a straight a tube will be going to get attached, you will attach to this tube। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा पॉज करके बोलता हूँ, अपन लिनियरिटी में बोले, हाँ सर, अपन लिनियरिटी में देखे, अभी बोले अपन कि 5 to फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की वजह से 500 एग्जांपल जैसा होता हूं मैं, अब किसी पेशेंट को 645 आया, ठीक है, अब आपकी मशीन 645 चेक नहीं कर सकती, तो क्या करना, छोड़ देना, क्या करना फिर, नहीं कैलिब्रेशन करें तो भी नहीं आता, कैसा आता, उसकी कैपेसिटी पास चेक करने की, डाइल्यूशन करना, डाइल्यूएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी लिनियरिटी डिस्टर्ब हुई तो डाइल्यूशन करना, सैंपल को डाइल्यूट करना, डाइल्यूट करने के बाद में कितने चीज से डाइल्यूट करें उससे इंप्रूव करना रिजल्ट को। बात आई समझ में, छोड़ देते नहीं, छोड़ दे नहीं सकते आप, डाइल्यूशन करना पड़ता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके अगर मशीन की लिनियरिटी उतनी नहीं है तो आपको डाइल्यूट करना, डाइल्यूट किससे करना, डिस्टिल वाटर से करना, नॉर्मल सलाइन से नहीं करना डाइल्यूट। नॉर्मल सलाइन से अगर करें तो क्या होता, इसके अंदर सोडियम है, नॉर्मल सलाइन में सोडियम रहता, फिर आपका वैल्यूएशन वेरिएशन आता, वैल्यू वेरिएशन में आता। आपके अगर लिनियरिटी मशीन की उतनी नहीं है तो यू विल गो फॉर द डाइल्यूशन ऑफ द सैंपल, यू नीड टू डाइल्यूट द सैंपल, एंड कितना आप डाइल्यूट कर रहे हो उससे फिर इनटू करना, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस डाइल्यूएंट, and there will be one more tube is going to get connected, that will be called as air bubble, air bubble। इसको जमाया नहीं,
चलिए अभी आप देखिए सैंपल ले लिए आप कुवेट में, ले लेंगे आप सैंपलर में रखे, सैंपलर में जैसा आप रखे, रखने के बाद जो द प्रॉम्प्टिंग पंप रहता है, एक पिपेट के जैसा पंप रहता है, अगर आप मशीन में देखो वाला है अपने रोटर, ठीक है, तो हैंडल से सक्सेस होते रहते, ठीक है, उन लोग क्या करते हैं, ये सैंपल को लेते, उठाते सैंपल को, उठा के ट्यूब के अंदर डालते सैंपल का, ठीक है, ट्यूब के अंदर डालने के बाद में से यहाँ से एक एयर बबल निकलता, निकलने के बाद में सैंपल को आगे करते ताकि उन्हें दूसरे सैंपल से मिक्स नहीं होना हो। ये कैसा सीरीज है मान लो, ये एक है समझिए आपका ट्यूब, इसके अंदर यहाँ पे आप सैंपल डालें, ठीक है, अब ये सैंपल को आगे भी बढ़ाना है आपको, ठीक है, यू नीड टू कंटिन्यूअसली फ्लो द सैंपल एज वेल एज यू नॉट अलाउड टू मिक्स विद अनदर सैंपल। तो इसके लिए क्या करें अपन, एयर बबल का यूज करें, एयर बबल, एक लार्ज एयर बबल के लिए इन्हें क्या करता है, सैंपल को आगे पुश करता, आगे पुश करता, पुश करने के बाद में यहाँ पे बीच में इन्हें क्या करता, एयर को फिल करता। ये एयर ऐसी डिजाइन एयर है, इन्हें वैल्यूज को कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं करता, फ्लक्चुएट नहीं करती, ठीक है, तो इन्हें क्या करा, एक सैंपल डाले, उठाया यहाँ से, दूसरे सैंपल को डाला, उसके बाद मैंने एयर से सैंपल को आगे ढका, ठीक है, बाद फिर नेक्स्ट सैंपल लिया अपन, नेक्स्ट उसको डाला, फिर उसको आगे ढका, फिर थर्ड सैंपल के लिया, आगे ढका, ठीक है। अब ये सैंपल्स क्या करते हैं, सीधा निकल के यहाँ पे आते, ठीक है। बाद प्रोसीजर्स में अपने को पीएफएफ होने की जरूरत रहती है, प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट, ठीक है, बाद प्रोसीजर्स में नहीं जरूरत है। अगर प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट की जरूरत रही तो डायल्यूटर एक्टिवेट हो, एक्टिवेट होकर क्या करता है, इसके अंदर एक सेमी परमेएबल लेयर है, सेमी परमेएबल लेयर, इट विल बी एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है, सो इट विल गोइंग टू फिल्ट्रेट द सब्सटेंसेस एंड मेक द सब्सटेंस प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट। समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में। सैंपल उठाया यहाँ से अपन, एक सैंपल देखिए, यहाँ पे एक सैंपल है, देखिए यहाँ एक का सैंपल लिखे, ये दूसरे का सैंपल है, ये तीसरे का सैंपल है, ये चौथे का सैंपल है, कंटीन्यूअस फ्लो, ठीक है, सबको ग्लूकोज करना है, पूरा को ग्लूकोज करना है प्रेजेंट, ठीक है। अपन किस चीज के बारे में बात करें, कंटीन्यूअस फ्लो एनालाइजर। कंटीन्यूअस फ्लो एनालाइजर किसके ऊपर काम करता है, एक टाइप का टेस्ट करता हूं एक टाइम, ठीक है। आप कंटीन्यूअस फ्लो एनालाइजर के बारे में बात करें अपन और वर्किंग देखते हैं, तो आपको सिर्फ ग्लूकोज करना है, ठीक है। ये पूरे सैंपल में फिट कर दिया, फिट करे तो इन्हें क्या करता है, प्रॉम्प्टिंग पंप, एक सैंपल को उठाया यहाँ पे रखा, ठीक है, रखने के बाद में अब दूसरा सैंपल उठाया तो फिर मिक्स हो जाता है जी, इसको मिक्स नहीं होना बोल के अपन कौन सी टेक्निक यूज करें, एयर बबल। एयर बबल क्या कर रहा है, ये सैंपल को आगे बढ़ाता है, बीच में एयर फिल कर रहा है, बात आई समझ में अब आपको। फिर नेक्स्ट सैंपल रख रहा है, फिर एयर फिल कर रहा है, तो एयर दो चीजों में काम कर रहा है, एक तो मिक्स होने में दे रही, दूसरी चीज उसको सैंपल को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। जब ये लोग यहाँ पे आ गए तो बाद प्रोसीजर्स में प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट की जरूरत रहती है, तो वो प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट डायलेजर काम करता है, उन्हें एक्टिवेट होता अगर कोई चीज को होना, तो इन्हें प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट करके आगे करता, ठीक है, आगे करता। पॉइंट 1 ये पैरेलली सेकंड ट्यूब है, सेकंड ट्यूब में अब आपको सैंपल के साथ रिएजेंट भी होना है, ग्लूकोज का रिएजेंट, तो रिएजेंट्स में से रिएजेंट ट्यूब में से मैं रिएजेंट लेता, ये पाइप्स कनेक्टेड रहते रिएजेंट बॉटल्स, ठीक है, एक रिएजेंट बॉटल की ट्रे रहती है पैरेलली, उसको कनेक्टेड रहते, ठीक है। अब रिएजेंट बॉटल में से आप रिएजेंट ले लीजिए, ग्लूकोज का रिएजेंट, अब ग्लूकोज के रिएजेंट की क्वांटिटी भी फिक्स है, दूसरी क्वांटिटी नहीं बना सकता, तो इसको किससे भी डिफरेंशिएट करते हैं, फिर एयर बबल से, ठीक है। तो एयर बबल क्या करता है, इसको आगे बढ़ाता, डिफरेंशिएट भी करता दूसरी चीज में, नॉट टू मिक्स अप। जब ये लोग यहाँ पे आके मिलते तो एक टाइम पे एक ही सैंपल आता है, यहाँ पे एक टाइम पे एक ही पार्ट आता है रिएजेंट का, तो यहाँ पे दोनों मिक्सअप होते हैं, मिक्सअप होने के बाद में आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद में आता है हीटर। क्यों हीटर है, हर सैंपल की इंक्यूबेशन की जरूरत है, ठीक है। हीटर माने वो पानी वाला हीटर नहीं, यहाँ पे इंक्यूबेट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये सैंपल आपका हीट अप होगा, इन द सेंस इंक्यूबेट होगा, इंक्यूबेट होने के बाद में नेक्स्ट अपन इंक्यूबेट होते कलर चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो अपन किधर भेज रहे हैं, कैलोरीमीटर, ठीक है।
कैलोरीमीटर मोस्टली यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर स्पेक्ट्रम वाले चीज यूज होती है, स्पेक्ट्रम की ज्यादा वेरिएशन है कंपेयर टू कैलोरीमीटर, ठीक है। जैसा कैलोरीमीटर में कुछ भी रीडिंग आता है रिकॉर्डर के जरिए आपको रीडिंग, so this procedures this kind of flowing thing will be called as a continuous flow analyzer. Continuous flow analyzer इसलिए से इसको बोल रहे हैं because continuously इन्हें flow कर रहा samples prompting pump with the help of the prompting pump analyzer. अब और advancements आ गए हैं, there are multiple prompting pumps are there which are mixing up the sample with the different pollutants. अभी आपको air bubble की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये पहला जनरेशन है, समझिए आप, फर्स्ट जनरेशन है of the auto analyzer. This is what the auto analyzer actually works, and this type of thing will be called as a continuous flow analysis. ऑटोमेशन में सबसे पहला ऐसा ये इंट्रोड्यूस ऐसे ये मैकेनिज्म के बेसिस पे अपन ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। पहले अपन को पिपेट करना पड़ता था, इंक्यूबेट करना पड़ता था, रिकॉर्डिंग रिजल्ट करना पड़ता था, कैलकुलेशन करना। अब ये चीज को ना क्या करे, पूरा को एक फैशन मैकेनाइज्ड फैशन सेक्टर में, ठीक है, एक सेट में सेट करे, एक ही मशीन इन्हें सैंपलिंग भी कर ले रही, रिएजेंट भी ले ले रही, सैंपल भी ले ले रही, मिक्स भी कर ले रही, इंक्यूबेट भी कर ले रही, रिजल्ट्स भी ले ले रही। तो ये लाइक चैनल प्रोड्यूस कर, ठीक है, एक चैनल प्रोड्यूस कर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस फ्लो एनालिसिस, ऑटोमेशन से पहले, ठीक है ना। सेकंड थिंग अपन क्या पढ़े थे, मल्टी चैनल, यस, मल्टी चैनल एनालाइजर में कर सकता है, मल्टी चैनल एनालाइजर मल्टी चैनल कंटीन्यूअस फ्लो एनालाइजर 6 to 12 डिफरेंट टेस्ट कर सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक पेशेंट का अपन पहले कंटीन्यूअस फ्लो एनालाइजर में क्या बोले, सो ग्लूकोज रहना, लेकिन ये मल्टी चैनल एनालाइजर में सो इन्हें इसका ग्लूकोज करो, इसका यूरिया करो, इसका क्रिएटिनिन करो, ऐसा भी कर सकते हैं। सेकंड चीज, एक का ग्लूकोज यूरिया क्रिएटिनिन ये भी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टी चैनल। इसका और थोड़ा एडवांसमेंट हुआ, कंटीन्यूअस फ्लो एनालाइसिस कुछ हो, आप मल्टी चैनल कंटीन्यूअस फ्लो एनालाइसिस डिफरेंट पैरामीटर और थोड़ा आगे बढ़े, डिफरेंट पैरामीटर 6 to 12 डिफरेंट पैरामीटर्स में अपन डिफरेंशिएट करके टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टेस्ट रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी अपने को वर्कलोड को डिमांड को नहीं फुलफिल हो, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करें, और एक स्टेप आगे बढ़े और अपन नए चैनल को इंट्रोड्यूस करें, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट एनालिसिस, ठीक है, डिस्क्रीट एनालिसिस। अब डिस्क्रीट एनालिसिस में ना सैंपलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ाए प्लस टेस्ट की भी कैपेसिटीज बढ़ाए, ना सिर्फ सैंपल्स की कैपेसिटीज बढ़ाए बस के, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 15 सैंपल्स कर सकते थे, 6 to 12 टेस्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ना डिस्क्रीट में 50 सैंपल एट अ टाइम रन कर सकते हैं, ठीक है, विद 50 डिफरेंट पैरामीटर्स कर सकते हो डिस्क्रीट एनालिसिस, ठीक है ना। ये डिस्क्रीट एनालाइजर भी दो चीजों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, दो चीजों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज सेमी ऑटोमेटेड एंड फुल्ली ऑटोमेटेड डिस्क्रीट एनालिसिस, सेमी ऑटोमेटेड एंड फुल्ली ऑटोमेटेड, जो भी चलता सेमी ऑटोमेटेड एंड फुल्ली ऑटोमेटेड। अब एडवांसमेंट जैसे जैसे कंप्यूटर के जनरेशन में भी हुआ, तो कंप्यूटर निकल के सिर्फ उन्हें ऑफिसर्स तक रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ, डायग्नोस्टिकली भी उन्हें फिर डायग्नोस्टिक्स में भी आगे हो गया। अब आप क्या हो गया, अब आपको सैंपल को पूरे चीज़ा करने की भी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ तक भी एडवांसमेंट्स आ गए, आपको सेंट्रीफ्यूज करने की भी जरूरत नहीं है सैंपल, only you need to have the barcode, you put it in that, everything there. So these kind of a fully automated analysis they have been got introduced, ठीक है। अभी हेमाटोलॉजी में भी इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया एनालिसिस में भी कि पहले आपने तो यहाँ पे सैंपल नंबर डालो, फीड करो, फिर जैसे आपको लगो सैंपल, देन आप वो होता, लेकिन अब बड़े एनालिसिस ऐसे इंट्रोड्यूस हो गए मार्केट में
जिसके अंदर उन लोग सैंपल खाली रख दो, आप उन्हें मिक्सिंग भी कर रहा, फीड भी कर रहा, कुछ एब्नॉर्मल आया तो स्लाइड भी बना रहा उन्हें, फिर आपको पिक्चर्स भी भेज रहा कौन से टाइप के सेल्स इसमें एब्नॉर्मल दिख रहे हैं। एडवांसमेंट हैज गॉट टू इसका मतलब ये नहीं है कि लैब टेक्नीशियन का पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कंप्यूटर एरर्स ऑलवेज विल बी देयर। क्यूसी कौन रन करेगा? टेक्नीशियन। समझ रहे? तो अभी आप जैसे वो रिएजेंट से वो चीजों को समझने से भी ज्यादा आप क्यूसी पे फोकस करेंगे। क्यूसी जनरेशन है आपका, समझ रहे? कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, ये पूरे यही तो आपका जनरेशन है। वो मिक्सिंग करके केमिकल कोई भी रिएक्शन डालता है, वो बड़ा आर्ट नहीं है कुछ भी। समझ रहे आप? कोई भी करता, डीएमएनटी वाला भी करता, सब कुछ करता, समझ रहे? लेकिन आप जैसो क्यूसी करना ये एक आर्ट है। क्यूसी में भी स्टैंडर्ड डिविएशंस बनाना एक आर्ट है। मशीन्स के रीडिंग्स कैसा वेरिएशंस आ रहे वो चेक करना वो आर्ट। सैंपल अगर रॉन्ग कंटेनर में आया, कौन से वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकती है, ये आर्ट है। दिस इज द रियल आर्ट। समझ रहे? आप अगर कोई एक सिचुएशन है, कोई एक सिचुएशन है समझिए आप, जनरली एक नर्सिंग स्टाफ से गलतियां होंगी, उन्हें क्या करते हैं, हम सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करने के बाद में पूरा ईडीटी इमेज डाल देते हैं, फिर बाद में लोग डॉक्टर बोला लोग क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, सीधा प्लेट में डाल देते, ठीक है, उसके साथ कैल्शियम भी कराओ, दूसरे रूटीन टेस्ट में दो, तो मिक्स करके लेके आके दे देते। तो पहला हाँ ईडीटी में से उठा के अगर प्लेन में डाल दिया सामने, तो पहला वैल्यू कैल्शियम पूरे जीरो आता है, जीरो चल रहा है, ठीक है। अब लोग जीरो आया तो दे उठा के रिजल्ट नहीं देते, तो ये चीज आपको मालूम है। सेकंड थिंग, अगर किसी पेशेंट को कंटीन्यूअसली इंसुलिन जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स का है, पोटेशियम 100% लो आना चाहिए, समझ रहे बात आप? तो ये आपको मालूम नहीं था, कोई डीएमएलटी वाले को मालूम नहीं था, आप भी दे सकते हैं रिजल्ट्स अगर आप सही से देखें तो, ठीक है। एबीजी आपके पास आया, आर्टिफिशियल ब्लड गैस, ऑक्सीजन को एक्सपोज हो गया एबीजी, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स बढ़ के आते हैं, उसके यूटिलाइज हो गया हमारा ऑक्सीजन लेवल्स कम आ रहे, ये आप ही देख सकते हैं। पेशेंट स्टेबल दिख रहा है भाई, फिर भी इतने ज्यादा अबनॉर्मल आ गया उसको एबीजी, तो कोरिलेट नहीं हो रहा। तो ऑलवेज डायग्नोस्टिकली कोरिलेट करना ये अच्छे टेक्नीशियन और ये बीएसएमएलटी ग्रेजुएट्स की निशानी है। आप ग्रेजुएट है, आपको केस हिस्ट्री से लेके सैंपलिंग, कौन से टाइप पे वेरिएशंस आ सकते हैं, क्या हो सकता है, ये पूरे चीजें आपके जहन में रहना, तो ही आप कर सकते हैं, तो नहीं प्रोलॉन्ग कम्युनिकेशन पर नहीं, क्या वेरिएशंस आ सकते हैं, हेमाटोमा हो गया, क्या प्रिवेंट करते हैं, नीडल स्टिक इंजरी हो गई, क्या प्रिवेंशंस करते हैं, ये आपका काम है। तो एचआईवी सैंपल से एक्सपोज हो गया, क्या प्रोफाइल एक्सेस है, प्री प्रोफाइल एक्सेस क्या है, पोस्ट प्रोफाइल एक्सेस क्या है, ये मालूम रहना है। ब्लड बैंक की चीजें हैं, ये पूरे चीजें आपको यू शुड बी रिमेंबर। कोई टैटू करा के आया, कब डिफरेंट, कितने लिए डिफरेंट, वैक्सीनेशन की कितने लिए सर्टेन सर्विस ब्लड डोनेशन करा, कितने दिन के लिए डिफर करते हैं, मलेरिया से इन्फेक्ट हुआ कितने लिए, कोई एपिडेमिक से उठ के आ गया, काज कितने लिए डिफरेंट करते हैं ब्लड बैंक। कोई पैरासिटामोल अभी एक गोली खा के आया, एस्पिरिन लेके आया, कितने टाइम के लिए आपको डिफर करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, नहीं लेते उसका ट्रांसमिशन, ये आपको मालूम है। तो ये चार एक अच्छे लैब टेक्निक, नहीं तो केमिकल के रिएक्शन कोई भी करना, एक 10 फील्ड उठ के आगे कर देता, कोई बड़ा टास्क नहीं है उसके लिए। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, आई कैन टेक द एन नंबर ऑफ द डायग्नोस्टिक्स नेम्स जहाँ पे खाली डीएमएलटी करे हुए हैं, कर रहे हैं, दे आर रनिंग द सैंपल्स, they giving the results, because आपका laboratory sector, hospital sector एक commercial complex बना है, nobody is interested, but आप जहाँ पे अच्छे बड़े big corporate hospitals में गए, no doubt they are also commercial, but they are also value to their patients। जब आप value ना कर रहे हैं patients को, और दूसरी चीज सबसे बड़ी मुसीबत क्या रहती मालूम, laboratory results को चुनना, evidence बनाते हो, treatment को नहीं बनाना। हमारे को ये value आ रही है, इसके basis पे हम ये treatment करें, तो आपकी value के ऊपर उनका ट्रीटमेंट है, तो आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है इसके अंदर, समझ रहे? तो फिजियोथेरेपी वाला नहीं है, उन्हें आके मसाला करके गरम से के देके चले गए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई मसाज लगा के मसाज करके चले गए, ऐसा नहीं है आपके रिजल्ट पे।
तो आप भी रिजल्ट देते वक्त अलर्ट रहना, फॉल्स रिजल्ट्स नहीं जाने देना आपकी तरफ से। आप पेशेंट हिस्ट्री 100%, आप पेशेंट हिस्ट्री अगर किसी स्टूडेंट्स को मालूम हो गया आप एक बेहतरीन लैब टेक बन रहे, तो आप पेशेंट हिस्ट्री अगर मालूम हुई तो आधा रिजल्ट्स वहीं जा गया, आपके जहन में चलते रहता है ये रिजल्ट आना है इसको। ये बहुत बड़ा की पॉइंट है। ऑलवेज गो विद द पेशेंट हिस्ट्री, क्या चल रहा है उसको, ट्रीटमेंट क्या जा रहा है, पीटी एपीटीडी बढ़ के आ गया, उठा के उनको दे दो वैल्यू सर पीटी आई ना, जाके देखो कोई ड्रग थेरेपी भी क्या है, हेपारिन थेरेपी चल रही है उसकी, वारफरिन दे रही है कुछ, तो आप जाके मालूम करो। आईएनआर मॉनिटराइजेशन इस प्रोसेस कर, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ये फ्लक्चुएट कब होता है उन्हें, जब कोमेडिन वारफरिन ये ड्रग्स पे रहता पेशेंट, तो आईएनआर बढ़ गया, आना चाहिए उसको बढ़ गया। ठीक है, थोड़े बहुत चीज़ें आपको मालूम है, यूरिन सैंपल कलेक्ट कर रहे हो उसको, कंटिन्यूस एंटीबायोटिक्स खा रहा हूँ फिर भी यूरिन सैंपल ले तो कुछ भी मट्टी भी नहीं आता उसको, समझ 3 दिन का गैप है, कंटिन्यूस एक सलाइन पे से जा रहा, उससे सैंपल ले लिए, वहाँ से सैंपल ले लिए, क्रिएशन आना चाहता 100% आ। तो आप ऑलवेज एचबी भी अगर आया बिलो 7 पेशेंट अच्छा खासा दिख रहा, नहीं दिख रहा पहले आपको, तो आप पूछो सैंपल कहाँ से ड्रॉ करते हैं, समझ रहे, आईसीयू के साथ कनेक्टेड रहना, आईसीयू बिल्कुल भले ही टाइम लगा आपको, अच्छी रिपोर्ट अगर देना है आपको तो कॉल करके हमेशा पेशेंट हिस्ट्री नियाज समझ में आपको रिपीट सैंपल करा दो, हिस्टोपैथ का सैंपल लेना, एक बार आ गया नहीं रिपीट करा, आप रिपीट करा बिफोर गिविंग द रिजल्ट्स, फिर उसको स्टोर करके भी रखना सैंपल्स को, ये भी एक अच्छे लैब टेक के वो है, एवरीडे सैंपल स्टोर होकर रखें, बिकॉज 24 आवर्स के अंदर कभी भी उन्हें अगर रिपीट कराया तो आप रिपीट करके बोल सकते हैं उसके बाद, या फिर दूसरी लेबोरेटरी को रेफरल दिया तो नहीं। आप कॉन्फिडेंस कब हो सकते हैं, जब आपका क्यूसी अच्छा है, कैलिब्रेशन अच्छा है, आपको फुली कॉन्फिडेंट है नहीं, और आपको पेशेंट हिस्ट्री भी मालूम, ये हिस्ट्री के साथ ये हो सकता है, आज एक रिजल्ट कराया कल, और प्री रिजल्ट्स की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है इसमें, प्री हिस्ट्रीज, कल कराए थे उसको हीमोग्लोबिन आ रहा था 12, आज कराए थे 9 आ रहा, उसको कुछ ब्लड लॉस भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ सैंपलिंग मिस्टेक हुई, या फिर 2 लो सैंपल ले लिए 2 हाई सैंपल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीटीए की जो मशीन है, डीटीए की जो एंटीकोगुलेंट है, उसके अंदर जितना उन्हें मार्जिन दिया उतना ही लेना रहता है, 2 ml ही लेना रहता है, उससे कम लिए तो भी प्रॉब्लम है, उससे बढ़ के लिए तो भी प्रॉब्लम, एनीमिक पेशेंट्स में स्पेशली, आप ऑलवेज जाना इसकी चीज़ पे। और दूसरी चीज़ क्या है मानी, जिसको क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ के आते हैं, जनरली जिसको क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ के आते हैं तो उनको हीमोग्लोबिन लेवल्स कम आते हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। क्रिएटिनिन लेवल अगर बढ़ के आए, कोरिलेशन कैसे करना, मतलब ऐसे मतलब कैसे आए क्रिएटिनिन बढ़ के आए तो बिकॉज क्रिएटिनिन कब फॉर्म होता, जब आपका प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ, हीमोग्लोबिन में मेजर पार्ट प्रोटीन का भी है, तो ऑब्वियसली आपको फ्लक्चुएट होंगे हीमोग्लोबिन, समझ रहे, जिसको क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ के आते तो उनको प्रोटीन लेवल जनरली कम आते, इसलिए कम होना शुरू हो, खून भेजा नहीं उनके बॉडी में से, थोड़ा प्रोटीन भी लॉस, सर थोड़ा प्रोटीन एलएफटी में एलएफटी करके हाँ कम आता प्रोटीन, एल्बुमिन भी कम आता, ओके ठीक है, तो लोग खून भेजा नहीं, मतलब उनका टुकड़े टुकड़े होकर निकल जा रहा बॉडी में से। क्रिएटिनिन बनता है प्रोटीन का इन प्रोडक्ट इज क्रिएटिनिन, तो क्रिएटिनिन जो पेशेंट को कम आया तो उसके अंदर बढ़ के आया तो उसके अंदर जनरली एचबी कम पूरे, ठीक है, ये चीजें आपको कोरिलेशन में रखना, यू शुड ऑलवेज, प्रोबीएनपी सैंपल है, स्टैट सैंपल है, हेपेरानाइज्ड ट्यूबल है, मालूम नहीं है प्रोबीएन, टॉर्च प्रोफाइल, इसको क्या है टॉर्च प्रोफाइल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टॉर्च, लाइट, टॉर्च प्रोफाइल అంటే ఏంటి, प्रेगनेंसी में क्या है फुल फॉर्म, TORCH, टॉक्सोप्लाज्मा मंडाई, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, एचएनपी, हां रूबेला, ऐसा लग रहा है क्या, रूबेला टॉर्च प्रोफाइल है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं अपन एचएलए एंटीजन, आजकल के जनरेशन को तो एचएलए एंटीजन का रिसर्च करो, पढ़ो एचएलए एंटीजन फ्यूचर, ठीक है, वो बंद करो।